Good morning, students. Welcome to the 13th lecture of Power Engineering. In Unit 1, that is IC engine, today we are going to talk about the two-stroke diesel engine. Myself, Ravi Kumar Saxena, lecturer in Mechanical Engineering, James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. So, content of the today lecture is two-stroke diesel engine. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में. Before going to understand the two-stroke diesel engine, first of all we have to understand the difference between the diesel engine and petrol engine, because last class I talked about the two-stroke petrol engine. Today I am going to talk about the two-stroke diesel engine. So before going to understand the diesel engine, you must know the difference between the petrol engine and diesel engine. I have drawn the two diagram here, so you can understand the difference between these two diagram. First of all, if you see the first diagram, here we are going to use the spark plug. This one is spark plug, and here we are going to use the fuel injector. If you will see the diagram very carefully, then you can understand the difference between two diagram. अगर आप इस डायग्राम को अगर आप अच्छी रीति से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है. बहुत सारे बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये डिफरेंस ही नहीं पता रहता है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या अंतर होगा. अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आपको प्रोसेस को समझने में बहुत दिक्कत होगा. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डीजल इंजन, आई विल focus on the difference between the diesel engine and petrol engine, then I will go to the topic. So in petrol engine we use the spark plug. हम लोग जो है पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग को यूज करते हैं. देखिए यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो ये जो है पेट्रोल इंजन है. अब पेट्रोल इंजन है तो कौन सा पेट्रोल इंजन है, 2 स्ट्रोक का है कि 4 स्ट्रोक का है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर पोर्ट है, इनलेट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है. तो ये जो है आपका 2 स्ट्रोक का डायग्राम है. तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, दिस डायग्राम शोस दैट इट इज 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का है. इन सेकेंड डायग्राम, इफ यू विल कम टू द सेकेंड डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ 2 स्ट्रोक डीजल इंजन. ये जो डायग्राम है डीजल इंजन का है, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है. अगर फ्यूल इंजेक्टर अगर लगा हुआ रहेगा तो वो जो है डीजल इंजन हो जाएगा. और यहाँ पर पोर्ट लगा हुआ है, इसलिए ये जो है आपका 2 स्ट्रोक हो गया. तो अब हम समझ गए कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस है, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है. नाउ इफ we will talk about the 2 stroke diesel engine. 2 stroke diesel engine has one working power, that is a stroke for every revolution of the crankshaft. Listen carefully. 2 stroke is nothing but there will be one complete revolution of crankshaft. One complete revolution of crankshaft. Ignition of charge takes place due to the heat produced in the engine cylinder at the end of compression stroke. As in last class I taught that in 2 stroke engine the ignition process will take in the end of or before the ending of compression stroke. So same thing is going to happen in 2 stroke diesel engine also. First of all, 2 stroke is nothing but the process is going to complete in 2 stroke itself, and there will be the one complete revolution of crankshaft. In 4 stroke there will be the there will be the 2 complete revolution of crankshaft. In 2 stroke only one complete revolution of shaft will be there. Now we are going to see the working principle. So before going to see the working principle, you see the diagram. If you will see the diagram, then you can understand very well the process of 2 stroke diesel engine. So first stage is suction stage. In this stage, the piston wheel going down towards BDC uncover both the transfer port and the exhaust port. The fresh air flows into the engine cylinder from the crankcase through the transfer port. तो यहाँ पर क्या होता है, सक्शन स्टेज में पिस्टन जो है BDC में जाता है. मीन्स इन सक्शन स्टेज piston will travel from TDC to BDC. TDC is nothing but top dead center and BDC is nothing but bottom dead center. So first of all we will talk about the construction of 2 stroke diesel engine, then we will go to the working principle.
तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं ये आपका क्रैंकेस हो गया, ठीक है, ये जो आपका पूरा हो गया ये आपका क्या हो गया, क्रैंकेस हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपका फ्यूल इंजेक्टर है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है फ्यूल इंजेक्टर। उसके बाद यहाँ आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, उसके बाद इनलेट पोर्ट है, उसके बाद एक ट्रांसफर पोर्ट लगा हुआ होता है। हमने आपको बताया था टू स्टॉक अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर पोर्ट लगा रहेगा। तो टू स्टॉक में 3 पोर्ट होता है। पहला पोर्ट का क्या नाम है, ट्रांसफर पोर्ट, दूसरा पोर्ट का क्या नाम है, इनलेट पोर्ट, और तीसरा है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो टू स्टॉक का मतलब पोर्ट लगा रहेगा, 4 स्टॉक का मतलब वाल्व लगा रहेगा। वाल्व जो है 2 होगा, डेट इज इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका जो है ये क्या हो गया, तो सिलेंडर हो गया, इसके अंदर में जो है सिलेंडर है जिस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपका क्रैंकशाफ्ट है और ये जो है कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड है और क्रैंकशाफ्ट है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं जीआईएफ डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर पिस्टन जो है अप एंड डाउन कर रहा है। उसके बाद जो है ये आपका जो है ये जो मोशन जो है ये रोटरी मोशन में जो है चेंज हो रहा है, अर्थात रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज गोइंग टू चेंज इनटू rotary motion. Listen carefully. In beginning I have taught you that in this process, that is in suction or compression in anything, the reciprocating motion, that is up and down motion, is going to convert into the rotary motion. So you can see in the diagram. So first stage में क्या होगा, पिस्टन जो है ट्रेवल करेगा, that is BDC में आएगा, TDC से BDC में आएगा और अनकवर करेगा, जब ढप जाएगा ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट, और आपको जो है फ्रेश एयर जो है उसमें आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंप्रेशन स्टेज। कंप्रेशन स्टेज, so in compression stage what is going to happen in this stage, the piston while moving up, जैसा कि हमने आपको बताया था पिस्टन जो है जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पिछला स्टेज में क्या था, पिस्टन जो है TDC से BDC में आया था, तो अब जो है पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो फर्स्ट कवर द ट्रांसफर पोर्ट एंड देन एग्जॉस्ट पोर्ट, आफ्टर दैट द एयर इज गोइंग टू कंप्रेस्ड एज द पिस्टन मूव्स अपवर्ड। सो piston, when the piston will travel from BDC to TDC, that is when it will travel up, then the transfer port, it will cover the transfer port. So transfer port आपका क्या होगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट भी कवर हो जाएगा। और कंप्रेशन स्टेज में क्या होता है, इन कंप्रेशन स्टेज एयर is going to compress, the inlet port also opens and fresh air enters into the crankcase। देखिए फ्रेश एयर जो है आपका आ जाएगा, और जो पिछला प्रोसेस में क्या था, जो एयर था वो आपका निकल गया था, ठीक है, तो अभी फ्रेश एयर आ जाएगा। अब जब आ जाएगा तो जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसमें क्या होगा उसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि कंप्रेशन स्टेज में क्या होगा, कि पिस्टन जो है मूव करेगा अपवर्ड की ओर। इन दिस स्टेज द पिस्टन व्हाइल मूविंग अप फर्स्ट कवर्स द ट्रांसफर पोर्ट एंड देन एग्जॉस्ट पोर्ट, और आपका जो है इनलेट पोर्ट क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है, इनलेट पोर्ट क्या होगा, ओपन रहेगा, जिसके चलते जो है फ्रेश एयर जो है आ जाएगा। सी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट द डीजल इंजन, सो ओनली फ्रेश एयर विल कम। आपको माय डियर स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, तो इसमें जो है एयर और फ्यूल दोनों जो है मिक्सर आता है, लेकिन डीजल इंजन में केवल और केवल एयर आता है, तो उसको भी हमें याद रखना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेंशन स्टेज। सो एक्सपेंशन, आफ्टर द कंप्रेशन expansion process will happen. So shortly before the piston reaches the TDC during the compression stage, हमने जो है compression stage को आधा ही बताया था, क्योंकि जो है हम इसमें जो है पूरा कवर करने जा रहे हैं। तो जब पिस्टन जो है TDC रीच करने से पहले ही fuel is injected into the engine cylinder in the form of very fine spray through the nozzle। देखिए अभी कंप्रेशन स्टेज कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले ही, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल को इंजेक्ट करना शुरू कर देगा। द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन स्प्रे थ्रू द नोजल नॉन एज फ्यूल इंजेक्टर, जिसको हम लोग फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं। एट दिस मोमेंट द टेम्परेचर
of the compressed air is sufficiently high to ignite the fuel। तो इस मोमेंट में क्या होता है कि जो हमने कंप्रेस किया था लास्ट स्टेज में, दैट इज हेयर, हमने जो कंप्रेस किया था तो एयर तो कंप्रेस हो गया है। तो एयर जब कंप्रेस हुआ है तो टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है। अब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कहावत तो हमने सुना है कि अगर लोहा गर्म रहे तो उस पर हथौड़ा मार देना चाहिए। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तब अगर हम आग लगा देंगे, अगर हम तेल छिड़क देंगे तो आग लगेगा ना जी। जैसे कि हम लोग कहावत सुने हैं ना, जले पर नमक छिड़कना। उसी तरह से मान लीजिए अगर हम वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और एन वक्त पर हम जो है डीजल को हम वहाँ पर छिड़क रहे हैं तो आग तो लगेगा, तो इग्निशन होगा। तो यहाँ जब इग्निशन होगा, द फ्यूल इज एज्यूम टू बी बर्न एट कांस्टेंट प्रेशर। फ्यूल क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पर। इट सडनली इंक्रीजेज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। जब फ्यूल जब जलेगा, कोई भी चीज़ को हम जब जलाएंगे तो अचानक से इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्रेस एयर था, हमने जो है तेल डाल दिया, डेट इज हमने डीजल डाला, फ्यूल डाला, जिसके चलते क्या हुआ, इग्निशन हुआ, डेट इज कंबशन प्रोसेस हुआ, जिसके चलते क्या हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ड्यू टू राइज इन प्रेशर द पिस्टन पुशेस द डाउनवर्ड। अब प्रेशर जब बढ़ गया तो पिस्टन जो है अपवर्ड में था, डेट इज टॉप डेड सेंटर में था। तो जब टॉप डेड सेंटर में था तो इसको जो है नीचे पुश करेगा, वो भी जो है बड़ी फोर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है आग जला था, देख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए। जब यहाँ पर जो है हम आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करें, देखिए जब आग लगेगा, जब रेड होगा, उस समय आप देखिएगा कि किस तरह से जो है फोर्स, ये देखिए तो कितना फोर्स के साथ जो है पिस्टन को डाउनवर्ड में कर रहा है। यानी कि द पिस्टन इज पुश्ड डाउनवर्ड विथ ए ग्रेट फोर्स, यानी कि ग्रेट फोर्स माने ज्यादा ताकत के साथ पिस्टन को नीचे करेगा। द हॉट बर्न गेट एक्सपेंड ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द पिस्टन। अब पिस्टन जब नीचे आएगा तो यहाँ पर जो है जो गैस था वो क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड किया, इसीलिए हम इसको क्या बोले, एक्सपेंशन प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन सम ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज ट्रांसफर इनटू द मैकेनिकल वर्क। और यहाँ पर जो है हमको एक्सपेंशन में क्या मिलता है, पावर मिल जाता है। ठीक है, पावर मिलेगा, उसको हम मैकेनिकल वर्क में यूज करेंगे। अब जब मैकेनिकल वर्क में यूज करेंगे तो हमको पावर तो मिल गया है। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, हमने आपको बताया था। तो अगला प्रोसेस जिस तरह से जानते हैं वो प्रोसेस होगा, दैट इज exhaust process। ठीक है, that is exhaust stage। Now we are going to talk about the last stage, that is exhaust stage। In this stage the exhaust port is open। लास्ट का अथी है स्टॉक, तो यहाँ पर जो है exhaust port क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पर डायग्राम को देखिएगा, देखिए यहाँ से जो है आपका निकल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन दिस स्टेज द एग्जॉस्ट पोर्ट इज ओपन एज द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, पिस्टन जब जो है डाउनवर्ड मूव करेगा तो आपका जो है हो जाएगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन फ्रॉम द इंजन सिलेंडर आर एग्जॉर्टेड थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। द कंप्लीट साइकिल दिस कंप्लीट द साइकिल एंड द इंजन सिलेंडर इज रेडी टू सक द चार्ज अगेन। और जो कचरा था वो बाहर निकल जाएगा और फिर से जो है फ्रेश एयर जो है अंदर आएगा, दैट इज चार्ज जो है अंदर आएगा। तो ये था आपका एग्जॉस्ट स्टेज। यानी कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या क्या प्रोसेस हुआ उसको हमने जो है डिटेल से अभी आपको बताया। सो इन दिस डायग्राम वी आर सीइंग दैट द फ्यूल इज कमिंग इनसाइड एंड आप जो रेड कलर का देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूल जो है बर्न होगा, उसके बाद जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा जो है ये बाहर चला जाएगा। तो ये डायग्राम को आप अगर आप अच्छा से देखिएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं चार्ज जो है अंदर आ रहा है, उसके बाद जो है कंप्रेस हो रहा है, उसके बाद एक्सपेंड हो रहा है, उसके बाद जो है बाहर निकल जा रहा है। तो जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले चार्ज अंदर आएगा, उसके बाद कंप्रेस होगा, उसके बाद एक्सपेंशन होगा, पिस्टन जो है नीचे आएगा तो एक्सपेंशन होगा, उसके बाद जो कचरा जो चीज़ रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पर हमने जो है बुक का नाम लिख दिया है, अगर आप बुक को रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ सके। तो ये जो है हमने बुक का नाम यहाँ पर लिस्ट जो है दे दिया। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात किया टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में।
अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।